आइए प्रभु के वचन में जाएंगे। हाँ, आइए आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। Greetings to you all in the name of the Lord Jesus Christ. आज जो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ लंबा हिस्सा है, मगर मैं सिर्फ शब्दों से बताता हूँ। अगर आपके पास बाइबल आसपास रखी हो तो उठाकर अपने सामने रख लीजिए और मेरे साथ खोलते रहिएगा। And the portion I would like to share with you is a long portion. So I'll read it out to you. I'll explain it to you. Just keep the Bible open, read it along. मैं बीच बीच में पढ़ता रहूंगा उसको। I'll keep on reading in the middle. हाँ, तो आप भी अपनी बाइबल में देखिए, तभी आपको बात समझ में आ पाएगी। You'll only see, you see in the Bible, you'll understand. और जो लोग कैमरा खोल सकते हैं उनके लिए। And I'll be grateful if you can open your cameras. ये करीबन प्रभु यीशु मसीह से 873 साल पहले की इतिहास है की किताब में ये घटना लिखित है। And around 873 years before the Lord Jesus, this incident is recorded in the book of Chronicles. बाइबल के इतिहास की किताब में, in the Chronicles of the Bible. तो पुराना नियम का जो ये इतिहास है, ये हमें एक नई दिशा देता है जीने के लिए। The Chronicles or the history of the Old Testament, the Bible, gives us a new direction to live in our life. हाँ, ये हमारे लिए बिल्कुल प्रभु नया करके, नए नियम के द्वारा नया करके हमारे सामने रखता है। The Lord completely makes it new through the New Testament and brings it to us. हाँ, ये कहानी है यहोशापात की, और जो यहूदा का राजा था। This is a story of Jehoshaphat, who was the king of Judah. बड़ा धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला था। Very righteous and a man who feared God. मगर ये नहीं कि इसमें कोई पाप या गलती नहीं थी, ये बात नहीं थी। Not that he was a perfect man, there was no sin in his life. हाँ, तो बड़ी शांति के समय में जब ये जी रहा था, In time of great peace where he was living, तो 3 राजाओं ने, अम्मोनी, मोआबी और मुनियों ने इसके ऊपर युद्ध कर दिया। Ammonites, Moabites, and 3 kings, they attacked him. हाँ, और ये 20 अध्याय में है, इसको आप खोल लें। अच्छा है, आपके बाइबल खोल लीजिए तो You can open it in 2nd Chronicles, दूसरा इतिहास, उसके 20 अध्याय, 2nd Chronicles and chapter 20. हाँ, और फिर हम देखते हैं कि ये डर गया। He became scared because of this attack. क्योंकि तीनों देशों की जो फौज थी वो कुल 10 किलोमीटर की दूरी पर, मतलब इसके पास रह गई थी। Because all the 3 countries' army was just about 10 kilometers away from their country. Sorry, 19 किलोमीटर, 19 kilometers away from their country. हाँ, और जो घेर लिया था चारों तरफ से, completely surrounded them. और तब इसे मालूम हुआ, अरे मैं तो घिरा पड़ा हूँ। And then he realized that he's being surrounded. ना तो अब समय था इसके पास बचने के लिए, और ना सहायता मांगने के लिए, तैयारी के लिए, कुछ भी नहीं कर सकता। He didn't have time either to be saved or even to ask for help. और ये डर गया, very afraid. तो ये भाग कर गया सहायता के लिए। So he ran for help. प्रभु के पास गया, आदमी के पास नहीं। To the Lord and not to a man. अपने मुश्किल के समय सीधा प्रभु के पास गया। In the time of his trouble, he went to the Lord. प्रभु की मंडली में गया, वहाँ प्रचार कराया उपवास का, और कहने लगा कि उपवास के साथ प्रार्थना करें। He went amongst the Lord's people in the assembly of the Lord's people, and he announced for a fast. Let us fast and pray together. और जैसे ही वो करने लगे, प्रार्थना करने लगे, तो प्रभु की प्रतिज्ञा इनके सामने आने लगी। And as soon as they started praying, the promises of the Lord started coming in front of them. 9:10 में कहता है कि भाई मैं अकाल के समय तुझे बचाऊंगा, युद्ध के समय बचाऊंगा। जो सुलेमान ने मंदिर के बनते समय प्रतिज्ञाएं दी थी, वो दोहराने लगा। And the promises that started coming towards them in time of affliction and in time of famine, I will save you. The promises that had they got at the time of building of Solomon's temple came in front of them again. तो उससे मुझे कुछ 12 पद के लास्ट में कहता, मुझे कुछ सूझता नहीं है, मैं, तेरी आंखें बस तेरी ओर लगी और कोई मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। And in the end of verse 12, Jehoshaphat says, Lord, we don't know what to do, but my eyes are upon you. हाँ, तो ये देखिए, यहाँ पर ये कहानी है कि हम जब ऐसी परिस्थिति में जब हम कुछ नहीं कर सकते, उस समय बाइबल बताती है कि हमें क्या करना है। At such a time when we are not able to do anything, the Bible tells us what to do.
तब मंडली में से एक दास ने खड़े होकर बताया, Then a man of God rose up from the assembly and said, डरो मत, ये लड़ाई यहोवा की है, तुम्हारी नहीं। This भाई ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, यहोवा की लड़ाई है। is not your battle. The Lord, it is the Lord's battle. तो लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम जाओ लड़ने जाओ। You don't have to fight, the Lord will fight for you. तो लड़ना नहीं पड़ेगा और लड़ने जाओ, क्या बात कह रहे He हैं? said, What is this? I don't have to fight, and the Lord will fight for us. क्योंकि लड़ने जाओ, लड़ना नहीं पड़ेगा। He इसलिए भेज रहे हो says, फिर वाह भाई, you go for battle, but you will not have to fight the battle. Then why are you sending us for? से देखेंगे। And we'll see that. गया भाई जी वहां पर, And they went. तू क्या भाई, लड़ना नहीं पड़ेगा, तुझे लड़ने के लिए जाना है। वहां पर गया भाई, और वो ऐसे अंधे कर दिए, वो आपस में लड़ मरे। And when they went ahead for battle, which they did not have to fight, the Lord so blinded the enemies, they fought against each other and killed each other. कोई फिर जब खुद ही लड़ पड़े तो फिर बचाने वाला कौन था? And if they fought amongst themselves, then who was going to save them? हाँ, तो फिर उसके बाद घटना ये हो रही कि उन्होंने लूटी और 3 दिन तक लूटते रहे, फिर भी लूट नहीं कम हुई। And when they looted what had been left behind, they kept on looting for 3 days and still it was not enough. तो प्रभु ने लड़ाई में किस लिए भेजा था इन्हें? Why did the Lord send them out for battle? लड़ने के लिए भेजा था, not to fight. हाँ, 3 दिन तक लूटते रहे और चौथे दिन भाई जब थक गए तो जगह का नाम जो बराका है, जहाँ पर मैंने बताया 9 किलोमीटर दूर है, वहाँ ये बराका जो 9 किलोमीटर दूर है बेथलेहम के पास से, बेथलेहम से, तो वहां पर उसका नाम उन्होंने बराका यानी आशीष की घाटी रखी। And the place Baraka, which is about 9 kilometers from Bethlehem, they called it the Valley of Baraka, or the Valley of Blessing, abundant loot. हाँ, वो आनंद से भरे हुए थे, आराधना से भरे हुए थे, और फिर अब उन्हें जो डर था वो उनके शत्रुओं के दिल में डाल दिया। Now the fear that they had, they were full of joy. The fear that they had was now in their enemy's heart. 29 पद में कहता है उनके परमेश्वर का डर उनमें समा गया। जो यहोशू के डर था वो किस में आ गया? Now the verse 29 says the fear of God came upon all those nations. So Jehoshaphat's fear. ये कहानी है जिसे हम आज देखेंगे। This is the story we'll be looking at today. हाँ, आइए इस कहानी पे चलते हैं। Come, let's go to the story. तो परमेश्वर सामर्थ मांगे। Let us ask strength from the Lord. पहला पद पढ़ दीजिएगा, बस एक ही पद पढ़ लीजिए, मैंने कहानी आपको बता दी। 2 Chronicles 20 in verse 1, दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसकी पहली आयत। इसके बाद मोआबियों, एक मिनट आपकी बाइबल, पेन और अगर आपके कैमरे खुले रहेंगे तो अच्छा लगेगा। It will be great if you can keep your Bible open, notebooks and pens open and your camera open. पढ़िए भाई। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। After this, Moabites and Ammonites and with some of the Meunites came to wage war against Jehoshaphat. आइए प्रार्थना। Come, let us pray. प्रभु जी इस वचन पे आशीष दे। Lord, bless this word. अपने लहू से पवित्रता दे। Sanctify us through your blood. बोलते हाथ दे। Give boldness to speak. सारा कंट्रोल आप लें। And you will take full control. हमें क्रूस के पीछे छिपा लें। Hide us behind your cross. अब हम पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। Now there is no more punishment on us. क्योंकि हमें क्रूस पर दी हुई क्षमा प्राप्त हो गई। Because we have received the forgiveness of the cross of Calvary. हमें विवेक पर हम आपका लहू लेकर शुद्ध विवेक से We taking your blood on our conscience, we come in your presence. और आपकी सामर्थ देखना चाहते हैं। And we want to see your power today. मनुष्य का ज्ञान नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ। Don't want to see the knowledge of man with the power of the Holy Spirit. प्रभु जो हारे हैं वो नई सामर्थ पाके। Oh Lord, they who are defeated may go back with new strength नए आनंद से and new joy. ओ पवित्र आत्मा स्वर्ग खोले। Holy Spirit, open heaven. यिर्मयाह 1:9-48 से निर्गमन 4:12 पूरा करें। Fulfill Exodus 4:12, Jeremiah 1:9, Isaiah 48:6. बोलते याद दे पुकारने का शब्द। Give boldness to speak and a voice to cry out. शत्रु को यीशु के नाम से मार। Bind the enemy in the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम से मार। In Jesus' name we pray. Amen. देखिए, शैतान जब बड़े आराम से यहोशूआ जी रहा था।
Now Jehoshaphat was living very securely. हाँ, बल्कि भाई जी शैतान आराम से नहीं बैठा, वो आपकी खुशी को देखकर पुकारा। But Satan is not quiet. He simply cannot tolerate you being happy. हाँ, उसका सबसे बड़ा दुख ये है कि आप सुखी क्यों हैं। His greatest sorrow and pain is how come you are happy? हाँ, और सबसे ज्यादा शैतान जो है आपकी आराधना से डर चिढ़ता है, And the most thing that Satan is scared of is your worship. क्योंकि उसने स्वर्ग में जो आराधना देखी थी वो इतना लालच था, यार ये आराधना मुझे क्यों नहीं मिली। Because of the worship that he had seen in heaven, he was so greedy. Why can't I get this worship? हाँ, अब वो प्रभु के साथ तो कर नहीं सकता कुछ, प्रभु की देह जो यहाँ पृथ्वी पर है उस जो आराधना चढ़ाती है उससे चिढ़ता है। Now he cannot do anything against the Lord, but against the Lord's body which is upon the earth, he hates their worship. हाँ, प्रियो, आज चारों तरफ जब शैतान की आराधना होती है तो उसे बड़ी खुशी मिलती है। Today, when all around Satan is worshipped, he feels very happy. हाँ, और जब प्रभु को आराधना मिलती है सच्चे भक्तों के द्वारा तो उसे चिढ़ बसती है। And when the Lord is worshipped through his true saints, that really annoys him. हाँ, इसलिए वो प्रभु के लोगों पर बार बार वार करता है ताकि उनका आनंद छिन-भिन्न हो जाए। That is why he keeps attacking the people of God again and again, that their joy may be spoiled. हाँ, आपके लिए आपकी परेशानियां बहुत बड़ी हैं शायद। For you, your troubles, your problems are too much. प्रभु के लिए ये कुछ नहीं है, कोई चीज नहीं है। But for the Lord, they are too little. आपका काम नहीं चल रहा, भाई जी घर में बीमारी है, भाई जी वहां पर कर्ज है, ये वाली है, ये सब आपकी हो सकती है, प्रभु के लिए कुछ नहीं। Your work is not going on, or you are sick, or you have some loans upon you, whatever your trouble, too big for you. आपके बच्चे हैं, उनका for the कैरियर Lord. क्या होगा, ये होगा, आपके लिए बहुत सारी परेशानी। Your children's career, what will happen? There are so many problems for you. प्रभु ने कहा मैं तेरे वंश पर आशीष दूंगा, मैं तेरे पुत्रों का शरणस्थान दूंगा, तो फिर प्रभु जिम्मेवारी लिए जबरदस्ती सर लेता हूँ, आनंद को अपना छीन The लेता हूँ। Lord said, I am a refuge for your children, I will bless them. Then why do I take this problem and necessarily spoil my joy? आदमी के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या पता है? What is the biggest problem for man? जहाँ सारी आशा मर जाती है, Where all hope dies, वो है मौत। that is death. प्रभु के लिए मौत भी कोई समस्या नहीं। But for the Lord, death is also no problem. है कोई मौत समस्या उसके लिए रही? Is death a problem for him? आपके लिए हो सकती है, It can be for you, प्रभु के लिए कोई समस्या नहीं है। but not for the Lord. हाँ, देखिए शैतान हमारे आनंद को छिन-भिन्न करता है, क्योंकि आराधना का आधार जो है आनंद है। अगर आनंद नहीं है तो आराधना नहीं, वो सिर्फ शब्दों को Satan दोहराना। wants to spoil your joy because the basis of for worship, the basis of joy is worship. हाँ, वो बेस है, उसके ऊपर अगर आपके पास वो आनंद नहीं है, आप आराधना नहीं कर सकते, आप सिर्फ शब्दों का मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो। If you don't have joy, you will not be able to worship. You're only repeating some points. You're just doing some mantra. हाँ, तो शैतान आपके आनंद पर वार करता है। So Satan attacks your joy. अगर आप आनंद से सेवा नहीं कर रहे हैं, आनंद से आराधना नहीं कर रहे हैं, आनंद से वचन नहीं सुन रहे हैं, सब व्यर्थ है। If you're not serving with joy, hearing the word of God with joy, and worshiping with joy, everything is in vain. आपके अंदर आत्मिक बल ही नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। You will not have spiritual strength because the joy of the Lord is your strength. हाँ, आपको हर पल आनंदित देखकर भाई जी वो जलन से भर जाता है। So when Satan sees you joyful all the time, he gets very आपको irritated. दुखी देखकर बहुत मजा आता है। But when you are sad and sorrowful, that makes Satan very happy. पहला वार इसलिए है कि भाई जी कि आपका आनंद छिन। So the first attack is to take away your joy. हाँ, मतलब प्रभु ये सिखाना चाहता है यहाँ पर पहली बात। The Lord wants to teach us first of all. हाँ, देख मैं तुझसे कहता हूँ सदा आनंदित रहे, फिर कहता हूँ सदा आनंद। Lord is saying, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. सब हमेशा खुश रहे, कोई बात। Always be joyful. चिंता मत कर, चिंता मुझ पे डाल दे यार, मेरे पे है। Do not get overly worried and overly worried. Put all your cares upon me. हाँ, दूसरी बात उसे भाई मुसीबत में क्यों डालने दिया लड़ाई की? Why did he get him into this situation of battle?
अय्यूब को क्यों इस मुश्किल में फंसने दिया? Why did he allow Job to get into this trouble? आप जो इन मुश्किलों से निकल रहे हो, क्यों आपको पास डलने दिया प्रभु ने? And why did he allow you to go into all these problems that you're going through? कोई बीमारी से, कोई परेशानी से, कोई तकलीफ से, कोई परिवार से, कोई बच्चों से, बहुत सारी परेशानियों से परेशान है। So many are troubled either with their job or family or children or many problems, financial problems, sicknesses. हाँ, तो वो कह रहा है इस परीक्षा के बाद अगली क्लास में ले जाऊंगा, अगली आशीष में ले जाऊंगा। अय्यूब, तुझे दुगनी आशीष में ले जाने के लिए परीक्षा आई है। But the Lord is saying, because through this test and exam, I want to graduate you to the next class. It जब is हर बात भलाई के लिए double होगी, fold blessing. जब हर बात भलाई के लिए रखी है, तो ये बात क्यों नहीं भलाई के लिए होगी? जो When everything is kept for blessing, then why will this not be a blessing for you? हाँ, जब हर बात बोल रहा है, तो ये बात क्यों नहीं होगी? ये भी बात भलाई के लिए होगी। When the Lord says all things, then why not these things? फिर तीसरी बात कहता है, Then the third thing, हाँ, भलाई तो है ही प्रभु के लिए, and that is a blessing. मगर तीसरी बात, इस आग में निकल कर तुझे खरा बना दूंगा, खरा। And because taking you through this fire, I'll make you pure. खोट बिल्कुल तेरे सामने आ जाएगा, उसे अलग कर दे। तेरा खोट जो तुझ में है, तेरा खोट तुझसे अलग करूंगा। Your dross, the evil that is in you, I'll remove it from you. Impurity, I'll remove from you. दूसरी बात भाई जी, जो तपन है तुझे नरम कर देगी। गर्मी जो है वो हर धातु को नरम कर देती है, चाहे क्या। This heat of trial will make you soft and gentle. हाँ, दूसरी बात, हाँ, देख, हाँ, चौथी बात करता है, मैं तुझे, चौथा कारण ये कि मैं सामर्थ्य, ये जो परीक्षा है ये हमें मजबूत बनाती है, सामर्थ्य से बढ़ाती है, हमारे अंदर एक विश्वास देती है, अरे मैं उस परेशानी से निकल आया, इससे भी निकल। Trials make us strong. They teach us that if I come out through that trouble, I'll come out of this one also. हाँ, फिर आप पैसे की तरफ नहीं देखते, परिवार की तरफ नहीं देखते, आप विश्वास से प्रभु की तरफ देखते। Then you don't look at your problems or situations or family for your solution, but you look towards the Lord. मैंने कई बहुत बड़े बड़े अमीरों को देखा, अभी मेरे कई मित्रों में से है जो अभी कुछ मतलब पहले बहुत अमीर थे और आज पल में बिल्कुल कंगाल हो गए। I have seen many of my own friends, some people who are really, really well off, but in a little while and all their riches are gone. हाँ, मगर एक बात है, मैं तुझे इन परिस्थितियों से ले जाकर कंगाल नहीं बल्कि इन विश्वास में अमीर करना चाहता हूँ, मजबूत कराना चाहता हूँ। ये परेशानी तेरे लिए परेशानी है, मेरे लिए नहीं है। By taking you through this situation, I don't want to make you weak. I want to make you strong, and I want to make you rich in faith. They are problems for you, not for me. व्यवस्था विवरण 8:3 में कहता है, मैं इसलिए युद्ध में लाया हूँ, तो युद्ध करना भूल ना जाए, लड़ते कैसे। Deuteronomy 8:3, the Lord says, I have brought you into battle. You may not forget how to fight. हाँ, ऐसी परिस्थितियों में आएगा, ऐसी मुश्किलों में आएगा, ऐसी बीमारी में आएगा, ऐसी कमी घटी में आएगा, ऐसे डर में आएगा, तो तुझे कैसे लड़ना है वो मैं सिखा दूंगा इन परिस्थितियों। When you come through all these problems and difficulties and troubles and sorrows, I teach you how to fight them. हाँ, 8:3 में कहता है, नर्म बनाया इसलिए, ये तेरी भलाई के लिए, ये जो हालात तेरे साथ चल रहे हैं। Deuteronomy 8:3, the Lord says, this I brought to make you soft and gentle. मैंने आपको बताया कि मोआबियों, अम्मोनियों और मोनियों की जो सेनाएं थी 19 किलोमीटर की दूरी पर थी और वो कुछ करने के लिए उसके पास बचा ही नहीं था और सहायता पाने के लिए किसी के पास जा नहीं सकता था। Now these three forces of the Ammon, Moab and of Mount Seir were just 19 kilometers away. He could not go to anyone for help. हाँ, ऐसी हालत में जब वो कुछ नहीं कर सकता, उसे क्या कुछ करना है ये सिखा रहा है प्रभु। And in such a situation, when you cannot go anywhere for help, the Lord is teaching him what to do in that situation. हाँ, जब तू कुछ करने लायक नहीं है तो ये करना बस। When you are not able to do anything, then do this. ऐसी हालात से आप में से कुछ लोग निकल रहे होंगे। Some of you are going through this circumstance. अब मैं आपके सामने पद पढ़ता जाता हूँ, आप जल्दी जल्दी देखिए। Now quickly keep on reading the verses before you. बाइबल खोल रखी है। Keep the Bibles open. दूसरा अध्याय 20 अध्याय और 3 पद का मैं एक हिस्सा पढ़ रहा हूँ। And chapter 20 verse 3. उसमें लिखा हुआ है कि यहोशापात डर गया, यहोवा की खोज करने लगा, पूरे उपवास और प्रार्थना विचार किया। Jehoshaphat became afraid. He set himself to seek the Lord, proclaimed a fast throughout all Judah.
हाँ, यहोवा से सहायता मांगने के लिए गए, किसी To आदमी seek से help सहायता from- मांगने के लिए नहीं गए। To seek help from the Lord and not from man. हाँ, और प्रियो, जब भी ऐसी हालत दिखे जब आपको कुछ नहीं कर सकते, At a time when तब you उसके cannot do, पास जाइए जो सब कुछ कर सकता है। at a time when you cannot do anything, then go to the one who can do everything. हाँ, तो प्रार्थना सबसे बड़ी सामर्थ है। And prayer is the greatest power. हाँ, देखिए, आज लोगों के पास प्रार्थना करने का ना समय बचा है ना मन बचा है। Today, people neither have the time nor the heart to pray. समस्या के समय परमेश्वर के पास लोग नहीं भागते। In the time of trouble, people don't run to the Lord. आजकल व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना का कोई समय ही नहीं बचा। Today, there is hardly any time left for personal prayer. परिवार में प्रार्थना नहीं, मंडली में प्रार्थना नहीं, Family prayer, assembly prayer. 4, 5, 6 लोग प्रार्थना सभा में बैठे रहते हैं, Hardly 4, 5, 6 people in the prayer meeting. आधे ऊँगते रहते हैं, Half are asleep. आधे जो है वो परमेश्वर की तरफ नहीं घड़ी की तरफ देखते रहते हैं। Half are not looking at the Lord, but the clock. हाँ, बार बार यूं करके देखते रहते हैं। Keep on seeing how much time is left. हाँ, तो मन नहीं लगता प्रार्थना में। There is no heart in prayer. हाँ, तो बाकी जितनी अगर मन नहीं है तो फिर प्रार्थना सब दिखावे की चीज रह जाती है। And if your heart is not there, then prayer is only for outward show. अगर आपके पास प्रार्थना नहीं है, If you don't have prayer, अब मत सोचिए कि आपके पास कुछ है। then don't think you have much. आप बिल्कुल कमजोर हैं, शैतान आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपका मजाक बनाता You are very weak. Satan will not spare you. He will make a complete joke out of you. है। प्रार्थना में कमजोर शिकार शैतान के लिए सबसे आसान शिकार होता है। A weak prey in prayer is an easy prey for Satan. हाँ, देखिए, दुनिया का हर दिन काला होता जा रहा है। Every day of the world is becoming darker and हाँ, blacker. शैतान सामर्थ्य होता जा रहा है, विश्वासी कमजोर पड़ता जा रहा है। Satan is becoming stronger. The believer is becoming weaker. हाँ, तो मैं इसलिए लिखा था लूका 18 में आखिरी दिनों में, क्या मैं जब आऊंगा तो मैं अपने शब्दों के साथ जोड़ रहा हूँ, क्या ऐसी विधवा का जो प्रार्थना में हारी नहीं थी, मतलब जब क्या ऐसा विश्वास पाऊंगा? And Luke 18, the Lord had written, he said, when I come back, and I'll paraphrase it, when I come back, will I find the faith the widow had who had not been defeated? हाँ, So the faith, जो प्रार्थना पर विश्वास रखते हैं, the one who believe in the power of prayer. हाँ, वो औरत सब जगह कमजोर थी मगर प्रार्थना में कमजोर। That woman was weak in all things. She was not weak in prayer. हाँ, जो करने वाला था और उसने कहा मैं करके नहीं दूंगा, उसे भी करना पड़ा प्रार्थना में। The one who would not want to do anything for her, even the unjust judge had to do something for her. क्यों आप संसार को, अपने देश को, मौत के इंतजार में खड़ी इस दुनिया को वो दे सकते हो जो दुनिया में कोई नहीं दे You सकता। can give to the world and the people around you that which no one else can give. आप अपने देश को दे सकते हो, You can give it to your country. वो सिर्फ आप दे सकते हो, कोई नहीं सकता। Only you can give. No one else can give. जो पैसा नहीं दे सकता, ज्ञान नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, वो आप दे सकते हो, और वो है प्रार्थना जो आप दे सकते हो। Not money, not riches, but you can give them your prayers. देते हो आप देश को? You give prayers to your country. अपने विश्वासी भाइयों के लिए प्रार्थना का समय नहीं है। You don't have time to pray even for your believing brethren. क्यों? प्रार्थना का मन नहीं है तो प्रार्थना देंगे? Because you don't have heart of prayer, then how will they pray? हाँ, आपके स्तर और जो सीमाएं वो गिर गई, बहुत नीचे आ गई। Your standards have gone way down. और प्रियो, प्रार्थना में कमजोर व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। A man weak in prayer cannot do anything. हाँ, और प्रियो, खतरे का नाम बहुत बढ़ गया, बहुत बड़ा होता जा रहा है। The level of danger is rising steadily. बहुत सारे प्रचारक सिर्फ खोखले प्रचारक हैं, उनमें सामर्थ्य नहीं, क्योंकि प्रार्थना है, प्रार्थना बहुत है, प्रचार बहुत है, प्रार्थना नहीं। Most preachers are hollow because there's a lot of preaching but very little prayer. हाँ, नहीं तो बहुत सारे लोग प्रचारक हैं, नौकरी लग जाएगी, परेशानी चली जाएगी, बीमारी भाग जाएगी, हैं? और भाई जी, ऐसे प्रचारक बहुत सारे हैं। And there are a lot of preachers. Sickness will go, healing will come, job you will get, prosperity will come. Many preachers like that. आपकी समस्याएं नहीं रहेंगी आपके पास, Your problems will go away. झूठ है। आप मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिएगा।
Open your ears and hear me carefully. It's a lie. स्वर्ग जाने से पहले आपकी समस्याएं जाने वाली नहीं है। Before you go reach heaven, your problem will not go away. हाँ, अगली समस्या तैयार खड़ी है आपकी। Another problem waiting for you. हाँ, बहुत सारे वास्तविक विश्वासियों के विचार में प्रभाव नहीं है, Many of the believers don't have power in their preaching. क्योंकि वो उनके पास प्रार्थना का जीवन नहीं है, ज्ञान होने से कुछ नहीं होता। Don't have the life of prayer. Knowledge will not help. और 4 पद में हम देखते हैं उन्होंने इकट्ठे होकर सहायता मांगी, And it's written in verse 4, they gathered together and asked for help. और जब प्रार्थना मांगी तो 14 पद में देखते हैं कि वहां पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतर आई, आत्मा यहोवा का आत्मा समा गया। And in verse 14, we see the Spirit of the Lord came upon them, came upon Jaziel. हाँ, हारे हुए विश्वासी, डरे हुए विश्वासियों के अंदर सामर्थ्य आ गई। Great power came in defeated believers. हाँ, बिना प्रार्थना के सामर्थ्य आ ही नहीं सकती। Without prayer, power cannot come. हाँ प्रियो, ये जब मैं 14 पद आपसे पढ़ रहा हूँ, Now verse 14. हाँ, तब पढ़ना में आखिरी है, उसमें मंडली के बीच में यहोवा का आत्मा समाया। And certain the Spirit of the Lord came upon Jahaziel, the son of Zechariah. तब प्रभु ने प्रतिज्ञा देनी शुरू की 15 के आखिरी दूसरे हिस्से में, और तुम उस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, युद्ध तुम्हारा नहीं यहोवा का है। Then verse 15, last part, the Lord started giving them promises. Do not be afraid, nor be dismayed because of the great multitude. Battle is not yours, but God's. हाँ, और उसने हारे विश्वासियों को अपनी प्रतिज्ञा से सामर्थ दी। He strengthened defeated believers with his promises. हाँ प्रियो, 15 पद में क्या कहता है देखें चला जाओ। And what does he say in 15 verse? वो कह रहा लास्ट से, युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है। He says battle is not yours but mine. हाँ, और तुम्हें कुछ नहीं करना, करना जो मुझे करना है। And you don't have to do anything. Whatever have to be done, I have to do it. हाँ, तुम्हारा कोई प्लान नहीं, कोई युक्ति, कोई तुम बस चुपचाप देखते, स्टिल एंड सी, देव खड़े रहो और देखो। And there is no plan, nothing that you can do. Be still and know that I am God. हाँ, आप देखिए तैरने में ना, वो आदमी जो बहुत ज्यादा तरकीबें जानता है, ज्ञान जानता है, वो बड़ी जल्दी थक जाता है, वो नहीं चल सकता। And a person, a swimmer who knows many swimming techniques becomes very tired very soon. तैरने में एक होता है तिरना जिसे बोलते हैं, आप पानी पर ऐसे पड़ जाओ, लहरें अपने आप ले जाएंगी, जब वो आस्ते आस्ते आपको किनारे पहुंचाएंगी, इसे बोलते हैं तिरना। So instead of swimming, if you just keep floating, it will take you in a direction that it needs to. The current will take you in this direction. हाँ, जिन्हें तिरना आता है वो तिर जाते हैं। Those who know, वो तिर गए। Those who know how to float, they go across easily without getting tired. हिंदी में कहते हैं ना, भवसागर से तिर गया वो। And the song we have in Hindi, that in the midst of a stormy sea, I floated across. तो युद्ध तुम्हें लड़ना ही नहीं है। You don't have to fight the battle. बस तुम ऐसे करके आराम से सीधे पड़े रहो और देखो। But you keep lying on the stormy sea quietly, it will take you through. मैं 17 अध्याय पढ़ा हूँ। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा। हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामने करने के लिए चले जाना, यहोवा तुम्हारे साथ है। You will need not to fight in this battle. Position yourself, stand still and see the salvation of the Lord who is with you, O Judah and Jerusalem. Do not be afraid or be dismayed. सामना करने के लिए, अरे जब लड़ना नहीं है तो फिर ले क्यों जा रहा, घर में अच्छे बच्चे बैठे थे। Don't have to fight. Then why is he taking us? He's sitting comfortably at home. मैं जिसलिए ले जा रहा हूँ, तू चल। I am taking you for a reason. You come quietly with me. हाँ, तू चलता चल। You just keep going. लड़ाई है ही नहीं तेरी। You don't have to fight. हाँ, फिर वो कहता है और ठहरे रहना, और देखो कैसी प्रतिज्ञा आई। The instant the promise came, वैसे आनंद आ गया, joy came. आनंद आ गया, आराधना आ गई। And joy came, worship came. और वो अभी जीते नहीं है मगर आराधना करने लगे। Now they did not yet won, but they started worshiping. हाँ, देखिए 18 पद के लास्ट में कहता है, हाँ, यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया, और फिर लिखा है 19 में,
कहातियों और कोलियों और कुछ लेवी खड़े होकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति ऊंचे स्वर से करने लगे। अभी जीत मिली नहीं है, प्रतिज्ञा मिली है। And it's not, they've not got the victory, they just got a promise. And says Jehoshaphat bowed his head and worshipping the Lord. Verse 19, the Levites didn't तो quarrel. यहोशापात ने प्रार्थना की, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया और फिर से आनंदित हो गया। They- सामने अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, सारी मुश्किलें वैसी खड़ी हैं। They praise the Lord God of Israel with voices loud and high. So now the problem is not gone, but they are worshipping. हाँ, मगर एक बात बता रहा हूँ मैं आपसे, जो तुझे कैसे लड़ना है। So the promises, the problems are still there. Now the Lord अरे is saying, लूट- I'll teach you how to fight. तो लूटते लूटते थक जाएगा, लड़ते लड़ते नहीं, लूटते लूटते थक जाएगा। You will not get tired fighting, but you will get tired looting. हाँ, तो जमा क्या प्रभु ये क्या किया, ये क्या हुआ? क्योंकि मेरी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया। Just trust in my promises. और 20 में लिखा है, उन्होंने यरूशलेम के निवासियों से कहा, तुम यहोवा पर विश्वास रखो, उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास रखो, उसके नबियों पर जो प्रचार हो रहा है उस पर याद रखो, बस फिर कृतज्ञ होगे, तुम भला ही भला होगा, बुरा हो ही नहीं सकता। And they told the inhabitants of Jerusalem, believe in the Lord, believe in his promises, you will prosper, everything will happen good for you. 20 पद का आखिरी से लिखा, तुम अपने परमेश्वर पर विश्वास रखो, अब वो तब तुम स्थिर होगे और उसके नबियों की प्रीति करो, तो तब तुम कृतज्ञ हो जाओ। Verse 20, believe in the Lord your God, you shall be established, believe his prophets, you shall prosper. एक तो ये बात है भाई, अपने आप को पवित्रता से सजा लेना। One is to beautify yourself with holiness. हाँ, मैं और आप पवित्र नहीं है, मगर प्रभु यीशु मसीह का लहू सब पापों से पवित्र। You and I are not holy, the blood of अभी Jesus मैं पवित्रता makes us holy. We'll talk about होलीनेस. और तुम आनंद लो यार, मुंह क्यों लटकाए बैठा है? And be joyful. Why are you having a long face? हाँ, जबरदस्ती की मुस्कान मत चिपकाई हुई। हाँ बिल्कुल, प्रभु मुझे प्रतिज्ञा और विश्वास है, और ये आनंद तेरा बल बन जाएगा, ताकत बन जाएगी। Trust in his promises and this joy will become your strength. जब प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमें बल देती है और हम आनंदित हो जाते हैं। When we trust in the Lord's promises, they make us strong and we become joyful. अब ये आराधना कैसे, ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? And how will this battle be fought? भाई जी, बड़ी अजीब लड़ाई है। And a strange war. 3 राजाओं की फौजें खड़ी हैं, भाई जी हम भी फौज लेके गए। And 3 armies are standing, they went with their army. हाँ, कैसे ले गए? And how? 21 अध्याय के बीच में लिखा है, पवित्रता से शोभायमान मोहन होकर हथियार और बंदूक के आगे आगे यहोवा का गीत गाते हुए और उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करना। And verse 21, who should praise the beauty of holiness, they went out before the army, praise the Lord, for his mercy endures forever. ऐसी बेवकूफों की लड़ाई देखी, वो तलवार और भाले लिए खड़े, यहाँ पर झंझरी और ताल बजा के गीत गाते हुए जा रहे लड़ने। Have you ever seen a war? They're standing with chariots and horses and weapons, and they are going with musical instruments to fight तो the लोग battle. देख के कह रहे होंगे, यार इनका दिमाग खराब हो गया क्या? And they must be thinking these people are उनका mad. ढपली बजा रहे हैं, भाई जी गीत गा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, और इनकी तो ताल भी ठीक नहीं है, एक इधर गा रहा है तो एक उधर गा रहा है। They are playing music and singing, and even their singing is not great. Somebody is singing one, the other in the other direction. लोग कह रहे होंगे उनका दिमाग पागल हो गया, कुछ हो गया। These people have become mad. हाँ, ये हमें देख के लोग पागल ही कहते हैं यार, और क्या कहते हैं। And people look at us and think we are crazy. हाँ, तो ऐसी लड़ाई देखी आप? Have you ever seen a battle, a war like this? और भाई जी इसका परिणाम क्या हुआ? And the consequence? जीती लड़ाई। They won the war. हाँ, लड़ाई लड़ने के लिए नहीं, लड़ाई लूटने के लिए लड़ी। And they fought the battle not to fight but to loot. और भाई जी आज तक उसका नाम लग गया बराका, आशीष की लड़ाई। And the valley became the valley of Barakah, of blessing. हाँ, देखिए पवित्रता, प्रार्थना बहुत जरूरी है जीवन में, बहुत जरूरी। Holiness and prayer vital in a believer's life. मैं बुरी तरह पाप से हार गया था। I had been badly defeated by sin. मैं प्रभु के लोगों के पास किया, रोज पश्चाताप करता, फिर वही पाप कर देता। मेरा विवेक मुझे चैन से नहीं जीने देता। I went to the people of God. I would pray and repent and do the same sin all over again. My conscience was not letting me go through. मैं भागना चाहता था। I wanted to run away. मैं अपने साथियों के पास गया, मैंने कहा भाई मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरी
went to my fellow brothers, pray for me. प्रियो, निराश करने वालों की तो बड़ी लंबी लाइन खड़ी है। The long line of people to discourage you. कुछ वो लोग हैं जिन्होंने उस समय मुझे हिम्मत दी। But there are some who at that time encouraged me. ऐसे आदमी से कहा कि भाई घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ खड़े। To such a person, they said, brother, fear not, we are with you. हाँ, और प्रियो, मुझे जैसे आज जो प्रचार कर रहा हूँ मैं, उन लोगों की प्रार्थना और दी हुई हिम्मत के कारण मैं खड़ा हूँ। And today when I am preaching, it's because of their prayers and their support that they gave me. हाँ, प्रभु के लहू की तो पहली सामर्थ है। First of all, the power of the blood of God. हाँ, मेरा आनंद प्रभु ने लौटा कर दिया मुझे। My joy came back. देखिए, कुछ लोग कहते हैं वैसे हिम्मत तोड़ने वाले तो यूं ऐसा क्यों किया, मुझसे नहीं पूछा, इसे वो कर दिया। हर मुंह पे हर टाइम उनके मुंह पे कहीं मुस्कुराहट और आनंद दिखाई नहीं देता। People who want to discourage you always keep on pointing out. You've done this, you've done that. Why didn't you do this? Why didn't you do that? Always a long face, no ऐसे joy. लोग ना खुद में खुश रहते हैं, ना घर में खुश रहने देते हैं, ना रखते हैं। छोटी-छोटी बातों पे भाई झगड़े खड़े हैं उनके घर। Such people are not happy in the assembly, at home. Small problems, issues, big problems for them. और फिर मंडी में भी वो चैन से नहीं रहने देते। तुम जी कैसे रहे हो मुस्कुराए? Let it be peaceful even in the assembly. हाँ, ये किसके एजेंट है? Whose agents are these? हम 20 साल से विश्वासी हैं। We are believer, 20 years believer. अबे तू ना अपने आप में खुश है, ना अपने घर में खुश रहने देता, ना मंडी को खुश रहने देता। तेरे अंदर आराधना से कहाँ से होगी? जब आनंद नहीं है तो आराधना You का। are not joyful at home, not joyful in the assembly. If you're not joyful, how will you have worship? प्रियो, मैं जानता हूँ उस बात के लिए कमी मेरे अंदर बहुत रही। मैं ये नहीं कह रहा नहीं होंगी। I know I have also many weaknesses. मुझे जितनों लोगों ने, जब मैं डरा हुआ था, निराश था, हारा हुआ था, मुझे बहुत हिम्मत। But then I was defeated and very discouraged. So many of these brothers, they helped me. समय ज्यादा ना हो। अच्छा, मैं जब जवान था करीबन, तो मैं खंजरपुर में रहा करता था, किराए घर में। गांव है पास में ही रुड़की के, हम वहां पर किराए पे लेकर रहते। Now when I was young, we were living in a place called Khanjarpur near Roorkee. हाँ, मेरी बेटी की उम्र 6 महीने थी सिर्फ। My daughter was hardly 6 months old. हाँ, मेरा लड़का करीबन 2 साल का होगा। And my son was about 2 years old. और मुझे मीटिंग लेने पंजाब यानी अमृतसर जाना था। And I had to go for a meeting to Punjab, Amritsar. मेरी बेटी को बहुत जबरदस्त बुखार था। And my daughter was very sick, down with a very severe fever. वहाँ रात को रिक्शा भी नहीं मिलता था, और अकेली मेरी पत्नी उस समय जवान थी, और क्या करेगी, कैसे करेगी, मैं अब जा रहा हूँ। And at night, you can't even find a rickshaw. What will my wife do at night alone? And I'm going for ministry. मैंने मन में संभाल लिया कि भाई मैं नहीं जाऊंगा। मैं उस दिन फोन तो नहीं होते थे, मैंने कहा मैं टेलीग्राम कर दूंगा कि भाई मैं नहीं आऊंगा। And I decided in my heart, I'll not go. I'll ring up the brothers and tell them by telegram that I'm not coming. मैं नहीं आप जा पाऊंगा, मैं कैसे I छोड़ will दूं? not be able to come, leaving my small child behind. ध्यान से सुनिए, मेरी पत्नी ने एक बात कही। Now, carefully here, my wife said one thing. क्योंकि आज मालूम होगा तुम अपनी बेटी को ज्यादा प्यार करते हो अपने परमेश्वर को। She said, today we'll come to know whether you love your God more or your daughter more. और पत्नी होती नहीं, तुम्हारा दिमाग पागल है, बच्ची मर रही है और तुम जा रहे हो वहां प्रचार करने। Any other wife would have said, are you stupid? Your daughter is dying and you're going to preach? ऐसे बाइबल उठा के जाते हैं। Just carry the Bible and go. मेरी पत्नी ने कहा आज मालूम होगा तुम अपने परमेश्वर को ज्यादा प्यार करते हो या अपनी बेटी। My wife said, today we'll come to know whether you love your child more or the Lord more. मैंने कहा मेरी बेटी मरती है, मर जाए, मैं अब जाऊंगा। Even if my child dies, I'll go. मैं चला गया। And I went. अगर वो मुझे हिम्मत नहीं देती, If she did not encourage me, मैं रुक जाता। I would have stopped. उस पंजाब के काम का क्या होता? What would have happened to the work of Punjab? आपकी हिम्मत देने, आपके शब्द देने किसी को नहीं दिखाई देते कि इसके पीछे जो मेरे भाइयों की प्रार्थना और मुझे जो सहारा देते हैं वो कितनी बड़ी मेरी ताकत है। There is nobody who can, then the people are not able to see the support and the prayers of brothers and sisters behind me. आप जानते हो, आप भले ही जो सोचते हो बड़े उससे कर रहा है, मैं भाई मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे हिम्मत देते हैं, सहारा देते हैं, सहायता देते हैं और संभालते हैं और क्षमा देते हैं और क्षमा भी देते हैं। You might be thinking, oh, he preaches so powerfully, but remember there are people behind me to support me, pray for me, and even forgive me. प्रियो, जिसे हम प्यार करते हैं हम उसे खुश देखना चाहते हैं। Those whom we love, we want to see them happy.
हाँ या नहीं? आप बताओ True भाई, or not? Yes. सर तो हिला दे यार। प्रियो, परमेश्वर हमें खुश देखना चाहता है, दुखी देखना चाहता है, वो हमें प्यार Does the Lord want to see us happy or sad? हाँ, Happy. और दुखी देख के दुखी होता होगा नहीं होता होगा? Would he not be sad seeing me sad? Yes. प्रियो, आप प्रभु की खुशी हैं। You are the Lord's joy. प्रियो, वो इस खुशी के लिए आपके लिए गीत गाता है, आपको मालूम है? And you know he sings over your joy. आप उसके लिए गीत गाते हैं, वो आपके लिए गीत गाता है। You sing for him, he sings for ये you. बाइबल में लिखा, मैं अपनी तरफ से नहीं बता It's रहा। biblical. I'm not saying this. हाँ, वो आपको खुश देखना चाहता है, उसमें उसकी खुशी किसमें है? आप खुश दिखाई दे, मुस्कुराते दिखाई दे, आप हर परिस्थिति में विजय के साथ दिखाई दे। You want मेरा to भला ही see, होगा, मेरा बुरा नहीं हो सकता। he wants to see you joyful and happy and singing at all times and knowing that all things will work together for good for me. हाँ प्रियो, जब आप दुखी होते हो तो बहुत से दुख होते When you are sad, he is very sad. हैं। आप सुनिएगा, Now here. देखिए व्यवस्था हमें बताती है कि तुम दो तो पाओगे। And the Bible tells us, the Lord tells us, you give when you will receive. हाँ, तुम कर्म करो और तुम उसका रिवार्ड पाओ। You work and you will receive the reward. न्यू टेस्टमेंट कहता है तुम अनुग्रह पाओ तब अपने आप कर्म करो। And the New Testament says you get grace and that will make you do the work. मुझे आनंदित रहना सिखाओ। Lord, teach me to be joyful. हाँ, आनंद मेरा बल है। The joy of the Lord is my strength. हाँ, आनंद मेरी आराधना का आधार है। And it is the basis of my worship. आराधना ही विजय है, बल है, क्योंकि The worship is my victory. हाँ, युगांडा में, Pardon? युगांडा यार। In Uganda, हाँ, युगांडा में बहुत गरीबी है, बहुत ज्यादा गरीबी। a tremendous amount of poverty there. हाँ, जब संडे लोग आते हैं, जो आराधना करने विश्वासी आते हैं, When some believers come to worship on Sunday, कोई पपीता लाता है, कोई अपने घर की सब्जी लाता है, कोई मुर्गी लाता है, पैसा होता नहीं उनके पास। don't have money, somebody brings a papaya, somebody brings a chicken, मगर इतने खुश हैं कि उन्हें दिल देने में इतनी खुशी होती है। but they find so much joy in giving. हाँ प्रियो, मैं अभी पढ़ा था फिलिपाइंस का, एक बार सा पढ़ रहा था। I was reading about the Philippines. हाँ, तो वहां पर प्रचार करते करते थक गया, गला भी सूख गया, और लोग बैठे बड़े आराम से। And there a preacher preaching became tired, his throat was dry, and people are sitting comfortably. उसमें से कुछ लोग उठ के कहने लगे, जी हम यहीं बैठे हैं, आप थोड़ा गला घोरिए, पानी वानी पी लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, इतने हम गीत गाते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, फिर सुनेंगे। और And the people said to him, brother, you take a break, have a glass of water, we'll sit here, we'll sing and pray for you. और यहाँ पर And here, थोड़ी देर, अच्छा भैया यार 1 बजे अभी, oh, it's already 1 o'clock. प्रियो, वो इंतजार कर रहे हैं कि अब ये दोबारा आएगा और दोबारा हम वचन सुनेंगे। They are waiting, he'll come back again to preach the word of God to प्रियो, us. वो आराधना और वो आनंद मर गया है, मरता जा रहा है। That joy, that worship is there. हाँ, मैं दिल्ली में था, मैं दिल्ली जाता था मेरठ से लाजपत नगर में, 9 बजे सुबह मीटिंग होती थी, और लाजपत नगर में 1972 का टाइम है। And I used to go to Lajpat Nagar around 1972 from Meerut to Delhi in Lajpat Nagar for worship. हाँ, मैं रात को ही चले जाता था कि सुबह 9 बजे पहुंचना मेरे लिए It मुश्किल। used to be 9 in the morning, so I would go in the night itself. मैं 28-29 साल का हूँ, 26-27 साल। Hardly around 28-29-year-old. सही उम्र मुझे नहीं पता, 26 हिसाब लगाना पड़ेगा। Brother was around 26-year-old. हाँ, तो भाई रसल जो हमारे हैं, वो पूरे परिवार के साथ, उनके बच्चे भी जवान थे, छोटे थे, तो वो रात को ही आ जाते थे मंडली। And Brother Russell, along with his children, his wife would come in the night itself. वो बिल्कुल लॉरेंस रोड पर रहते थे, बहुत दूर है, और कैसे आते थे, 8-9 बजे पहुंचते थे वो ड्यूटी करने के बाद। They were staying in a place called Lawrence Road in Delhi, quite far away from Lajpat Nagar. How did There was no car, they don't have any car, anything. पूरे परिवार के साथ आते, भवन को Come साफ with the whole करते, family, clean the bhavan, सब्जियां काटते, सारा सामान तैयार करते, 12-1 बज जाते। cut the vegetables, set the things ready, it become 12-1 o'clock. किसी को नहीं मालूम, क्योंकि मैं वहां रहता था, इसलिए मैं देखता था।
Nobody knew, but he says, I used to stay there, I could see. और फिर वो 4-5 बजे फिर अपने बच्चों को परिवार को उठाकर खाना बनाते, 9 बजे तक पूरा खाना बनाते रख देते। Then 4-5 o'clock, they will wake up and get the children ready. They will prepare the food, everything ready before 9 o'clock. हाँ, मंडी में सुबह भाई आइजैक सुबह आ जाते। And Brother Isaac would come in the assembly very early in the और morning. टॉयलेट्स को अपने हाथ से रगड़ के साफ करता है, एल्डर भाई। And he was the elder who would clean all the toilets himself, rubbing and properly doing that. भाई वैसली आपको तो बिल्कुल तमीज नहीं है, टॉयलेट साफ नहीं करवा सकते थे आपसे? Oh, Brother Wesley, you are no manners. Can't you get the toilet clean? हाँ, हमारे बच्चे ऐसे गंदे टॉयलेट में जाएंगे। Will our children go into the dirty toilets? कोई भाई आइजैक को पहचानता नहीं था कि वो सुबह इतने बजे, क्योंकि मैं वहां रहता था ना, रात को रुकता था, तो मुझे पता था ये आदमी टॉयलेट साफ करता है। एल्डर है, एल्डर। Nobody knew the elder of the assembly, Brother Isaac, is coming in the morning cleaning the toilet. I used to stay और there. साढ़े 9 बजे मीटिंग शुरू होती थी और 3 बजे लंच होता था। 6 घंटे चलते थे, 3 घंटे आराधना में होती थी, पता नहीं लगता था टाइम कब गया। ऐसी आराधना कि स्वर खुल जाता था। 9:30 all the way till 3:30, 6 hours of meeting, 3 hours for worship. You wouldn't realize where the time is gone in worship. So great worship. वो आराधना कहाँ खो गई? Where has that worship gone? वो विश्वासियों का बल कहाँ चला गया? Where has that strength of believers gone? वो आराधना का आनंद कहाँ से चला गया? Where has the joy of the Lord gone? वो सेवा करने का आनंद कैसे चला गया? Where has the desire to serve the Lord gone? व्यवस्था 28, 47 और 48 पढ़िए, जल्दी से पढ़ दीजिए। Deuteronomy 28, 47, 48. यार घड़ी की तरफ मत देख यार, मैं कह रहा हूँ। Deuteronomy 28, भाई वर्ष बता दी फिर से 47, 48. हाँ, Deuteronomy 28, 47, 48. Yes, भाई। तू जो सब घड़ी की तरफ देखो, मेरा भी ध्यान इधर उधर भटकता है, प्लीज यार। तू जो सब पदार्थों के बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, इस कारण तुझको भूखा प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी होगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा, और जब तक तू नष्ट ना हो जाए तब तक वे तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेगा। Because you did not serve the Lord your God with joy and gladness of heart for the abundance of everything, therefore you shall serve your enemies whom the Lord will send against you in hunger, in thirst, in nakedness, and in need of everything. He put a yoke of iron on your back after he has destroyed you. वो कह रहा है अगर आनंद के साथ सेवा नहीं की, वो सेवा नहीं है, जिसमें खुशी नहीं है, आनंद। If you have not served the Lord with joy, it is not service. हाँ, आप थक सकते हैं, आप बहुत परेशान हो सकते हैं, आप मगर प्रभु की सेवा में एक आनंद नहीं है तो वो सेवा नहीं है। आराधना में अगर आनंद नहीं तो वो आराधना नहीं। You can become tired and broken, but if there is no joy in service and worship, it is neither service nor worship. कोई काम के लिए कह दो मंडली को, मैं क्यों मतलब इतना कुड़कुड़ा के मत करो, मत करो। Any work of the assembly given, oh, how can I do it? Don't do it. प्रभु की सेवा में हल्का जुआ है जिसे करने में आनंद आता है, जुए को उठाने में। The Lord's yoke is a light yoke, great joy to carry it. कोई शैतान ऐसा जुआ रख देगा, लोहे का जुआ, जो But Satan will put a yoke of iron on your shoulder. तभी तो हर बार करा दे हैं, ये हो गया भाई, वो हो गया, ऐसा होता है, That और is ऐसा why होता है। they're crying all the time. This happened, and that happened, and this is happening. मेरे पास सैकड़ों फोन आते हैं, भाई ये प्रार्थना कर, कोई नहीं कहता शायद इक्का दुक्का था, भाई धन्यवाद देना, इस बात के लिए देना, इस बात के लिए, खुशी के लिए देना। So many calls I get, so many calls. Brother, this happened and that happened, and pray with. Most of them are murmuring calls. I don't get calls of thanksgiving. शैतान ने उनकी गर्दन में लहू को जुआ रखा। Satan has put a yoke of iron on their shoulders. प्रियो, किसको हम खुशी दे सकते हैं? आप परिवार में छोटी बातों में अपनी खुशी को मत बर्बाद करें, मंडली को मत बर्बाद करें। How can we give joy to others? Don't spoil your family's joy in small things or in the assembly of God. हाँ प्रियो, प्रभु कहता है तुम्हारा आनंद कोई तुमसे लेने ना पाए। The Lord said, let no one take away your joy from you. हाँ, खाना खा रहे हैं, भाई जी इतना दे दिया, अरे यार तू खाया धन्यवाद करके प्रभु से। Oh, when giving food, oh, what have you made? Why did you make this? And so much murmuring. छोटी छोटी बातों में परिवार में मंडली में पंगेबाजी लेनी आदत है,
वो कह रहा है तुम्हारा आनंद कोई लेने ना पाए, तुम हो जो शैतान को ये मौका देते हो कि तुम्हारा आनंद छीन ले। There are issues in the home, in the assembly, small matters and unnecessary आराधना problems. You give Satan आराधना a का time. आधार है आनंद, और यही हथियार है आपके पास, आनंद हथियार है। The basis of worship is joy, and that is the weapon that you have for Satan, against Satan. मैं तुमसे कहता हूँ आनंदित रहो, फिर कहता हूँ आनंदित रहो। I am saying to you, rejoice in the Lord. Again, I say rejoice. हाँ, मगर मैंने कहा पहली पवित्रता को जरूर ध्यान रखिएगा। But first, be careful about holiness. हाँ भाई, बिजली से उनके अमेरिका में पूछ लेते हैं, वो मैं शायद तो बिजली से पूछा उसके ग्रैंडसन ने, पोते ने। So in America, they ask, and so Bisbee's grandson asked him. हाँ, उसने कहा ग्रैंडपा आपके जमाने में सेक्स के प्रोटेक्शन के लिए क्या करते थे? And he asked his grandfather, Grandpa, what did they use for protection against sex in your time? हाँ, तो उसने कहा हम मैरिज रिंग पहनते थे। He said we used to wear the marriage ring. ये प्रोटेक्शन था हमारा। That's the protection we have. हाँ प्रियो, प्रभु को देखिए, अगर लूका मती में जाए, मेरा टाइम खत्म हो रहा है, मैं क्या बताऊं आप में से, मुझे भी घड़ी देखनी पड़ रही है क्या कर? अच्छा, मरकुस में देखते हैं कोढ़ से भरा हुआ आदमी। And Mark, we find a man full of leprosy. थाईलैंड में मैं अभी अपनी सुबह अपनी मिसेस को एक फोटो दिखा रहा था थाईलैंड। In Thailand, I'm showing my wife a picture in the morning of a leper. ओ भाई जी, पूरा भरा हुआ, इतना गंदा, full of leprosy. It's so ugly, जो देखकर भी घिन आती, terrible even to look at. जी क्यों रहा है? Why is he living? प्रभु ने छुआ और बच्चे सी देह बन गई। The Lord touched him and his skin became like that of a child. अगर प्रभु का वचन आज आपको छुएगा, जो परमेश्वर है, If the word of God will touch you today, हाँ, आप कहाँ निकल के आ जाओगे? how you will come out. हो सकता है आपको मंडली माफ ना करे, मगर वो परमेश्वर अपनी आपको माफ करने के लिए तैयार है। Maybe the assembly may not forgive you, but that Lord is willing to forgive you right now. आपकी समस्याओं से बड़ा आपका परमेश्वर है। Your God is much greater than your problems. हाँ, मरने के साथ आशा मर जाती है, With death all hope dies. बहुत पर विजय पाएगा। That our Lord got victory over death. प्रियो, अगर परमेश्वर ने आज छुआ तो आपके दुख को आनंद में, निराशा को आशा में, कमजोरी को बल में बदल देगा। If your Lord touches you, will turn your sadness to joy, your hopelessness to hope, your weakness to strength. प्रियो, मैंने कहा ना, शायद मंडली भी आपके पाप सुनकर माफ न कर सके। I told you, even the assembly may not forgive you knowing your sins. देखिए, प्रभु का प्यार मुझ जैसे को माफी करके फिर से खड़ा कर सकता है। But the Lord's love can forgive a man like me and make me rise again. अगर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन नहीं ला रहा, तो ये बाइबल झूठी है या आप में झूठ है, इनमें से दोनों में से एक बात। And if the word of God is not transforming your life, either the Bible is false or something is wrong in your life. हाँ, कहाँ गड़बड़ है? Where is the fault? आप में भी चिड़चिड़ा, मैं तो कहता हूँ जितना खुश रह सको आप खुश रहो। And I'm saying, be as happy and joyful as you can be. आप आराधना में बढ़ जाओगे, आपके दर्शन खुल जाएंगे, आप में एक नई सामर्थ्य आ जाएगी। You will be filled with worship, your visions will open and you will get a new strength in you. मैं तुमसे कहता हूँ आनंदित रहो, फिर कहता हूँ आनंदित रहो। Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. परमेश्वर की पवित्रता को प्यार करो। Love the holiness of Christ. प्रार्थना की आत्मा से भरे रहो। Be filled with the spirit of prayer. हाँ, आपके आनंद को शैतान छूने ना पाए। And Satan will not be able to touch your joy. हाँ, आराधना का हथियार ही आपकी जीत का हथियार है। The weapon of worship is a weapon of your victory. तो आप मेरा बल है। Lord, you are my strength. तो मैं छोटी छोटी बातों में, अपने परिवार में, अपनी मंडली में उसका आनंद रखो। Lord, I will not spoil my family and assembly's joy, and small things I will not take away their strength. मुझे खुश रहना सीखो। Lord, teach me to be happy. प्रभु आप मेरा बल है। You are my strength. आइए हम प्रार्थना करें। Come, let us pray.